بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ یہ کتاب الاذان میں سے ایک حدیث ہے۔ مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 389 اور بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ حدیث نمبر 644 ہے، اور فی ظلال الحدیث شرح بخاری شریف اس کی ترتیب کے لحاظ سے یہ حدیث نمبر 618 ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان باندھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیحتب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرق علیہم بیوتہم والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدہم انہ یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان کا حکم دوں، اور پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں خود ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوئے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے، یعنی جو مسجد میں نہیں آئے، اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک گوشت والی ہڈی یا پھر 2 عمدہ پائے یعنی بکری کے کھر ان کو عشاء کی نماز میں ملیں گے تو وہ ضرور وہاں پر حاضر ہو جاتے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نماز باجماعت کی جو نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں جو عنوان باندھا ہے وہ ہے باب وجوب الصلاۃ الجماعت، کہ نماز باجماعت ادا کرنا واجب ہے، یعنی وہ فرض اس کو تصور کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنا اس کو فرض عین تصور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ساتھ ہی وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ ایک اثر لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی والدہ محترمہ عذرائے شفقت کسی کو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے سے روکے اور اس کو منع کرے تو وہ اپنی والدہ کا حکم نہ مانے۔ اسی طرح امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کی والدہ اس کو روزہ کھولنے کی حکم دیتی ہے اور روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ والدہ کی اطاعت کرے اور روزہ نہ رکھے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس روزہ کی قضا بھی نہیں ہے، البتہ اس کے اوپر اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو روزہ یعنی رکھنے کی اور پھر اپنی والدہ کی اطاعت کی وجہ سے، تو یعنی روزے رکھنے کا اس نے ارادہ کیا اور روزہ رکھا اور پھر والدہ نے اس سے روزہ کھلوا دیا، تو والدہ کی اطاعت اور روزے دونوں کا جو ہے نا ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں اس کو عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرنے سے روکے، ظاہر اندھیرا ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اگر ماں جو ہے نا کسی بچے کو روکتی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز باجماعت ادا نہ کرے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا اپنی والدہ کی بات کو اس کو نہیں ماننا چاہیے، اور والدہ کو جو ہے نا چونکہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے،
اس لیए वो अपने बच्चों को जो है ना वो मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकती। इसका मतलब यह है कि इमाम बुखारी नमाज बाजमात को अदा करना यानी बाजमात अदा करना इसको फ़र्ज़ तसव्वुर करते हैं या फिर सुन्नत मुअक्कदा तसव्वुर करते हैं। बाज़ फुक़हा ने इसको वाजिब अल किफ़ाया भी कहा है। उनके नज़दीक ये है कि ये वाजिब है, जैसे फ़र्ज़ किफ़ाया होता है तो इसी तरह ये वाजिब अल किफ़ाया है। लेकिन अगर इस हदीस और दीगर अहादीस को मिला के देखा जाए तो मालूम ये होता है कि एक सच्चा मोमिन अगर किसी वजह से बाजमात नमाज अदा करने से जो है ना वो रह जाता है तो उससे यानी एक वाजिब छूट जाता है या फिर सुन्नत मुअक्कदा उससे रह जाती है या फिर वो अफजलियत में पीछे रह जाता है। मुहद्दिसीन ने इस पर जो है ना अफजलियत की बात भी की है कि ये अफजलियत से वो महरूम हो जाता है। बाज़ अहादीस में अगरचे नमाज बाजमात अदा करने की यानी बहुत सख्त ताकीद है और उसकी अफजलियत को बयान किया गया है कि अगर एक शख्स नमाज बाजमात अदा करने से रह जाता है तो वो अजर और सवाब की उस अफजलियत से पीछे रह जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर इस्लाम का सियासी निज़ाम है उसमें एक आदमी नमाज बाजमात अदा करने को फ़र्ज़ नहीं समझता या फिर यह है कि उसका इनकार करता है और इसी तरह से ज़कात की अदायगी से वो इनकार करता है या उसकी फ़र्जियत का इनकार करता है, तो ऐसे लोगों के मुकाबले में फिर इस्लामी रियासत जो है ना रास्त इक़दाम करेगी। जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन लोगों के ख़िलाफ़ जो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात देते थे और बाद में उन्होंने इनकार कर दिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर दिया था। इस हदीस से ये भी यानी मालूम होता है कि बिला उज़्र शरई नमाज़ों में हाज़िर ना होना, इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त तंबीहात मौजूद हैं। कहा कि ख़ुद इस हदीस के अंदर भी आता है कि मैं लकड़ियाँ जमा करवाऊँ और फिर अज़ान नमाज के लिए अज़ान का हुक्म दूँ और फिर उसके बाद जो है ना किसी को कहूँ कि वो नमाज़ पढ़ाएँ और पीछे रहने वालों के मैं घरों में जाके उनके घरों को आग लगा दूँ। और बाज़ रवायात के अंदर इस तंबीह में ये भी कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर घरों में औरतें और बच्चों का मुझे खौफ ना होता तो मैं ज़रूर जो है ना इनके घरों को आग लगवा देता। इसी तरीके से बाज़ अहादीस में बाजमात नमाज की यानी तंबीह इस लिहाज से भी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक नाबीना शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त चाही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अज़ान की आवाज़ आती है? तो उसने कहा जी हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसका जवाब दो। यानी मतलब ये था कि उसके लिए फिर मस्जिद में आना जो है उसको लाजिम करार दिया कि वो मस्जिद में आए और फिर उसके बाद जो है वो यानी जमात के साथ नमाज अदा करे। बाज़ अहादीस में अलबत्ता ऐसी रवायत भी मिलती है कि बाज़ बुज़ुर्ग और नाबीना सहाबा थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उनके लिए ख़ुद उनके घर में मुसल्ला मुतय्यन किया। उनसे पूछा कि किस जगह पर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर नमाज अदा की और फिर वो नाबीना सहाबी जो बुज़ुर्ग थे वो फिर वहाँ पे नमाज अदा किया करते थे। लेकिन ये नाबीना सहाबी हो सकते हैं जवान हों, मस्जिद के करीब हों, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस तरह से कहा। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अज़ान सुने और फिर नमाज बाजमात अदा ना करे तो उसकी कोई यानी नमाज नहीं, इल्ला ये कि कोई उसको उज़र लाहक हो। इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी बस्ती में 3 अफराद रहते हैं और वो नमाज बाजमात अदा नहीं करते तो फिर इसका मतलब यह है कि शैतान उनके ऊपर हमला कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान उनके ऊपर हमला कर देता है, इसलिए जमात को लाजिम पकड़ो। और फिर साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक मिसाल के ज़रिए से समझाया कि बकरियों का एक रेवड़ होता है, तो जो बकरी रेवड़ से अलग फिर रही होती है तो हमेशा भेड़िया जो है उसी बकरी को चुक के ले जाता है जो रेवड़ से जो है ना अलग रहती है और दूर रहती है। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की फितरत और नेचर को भी बयान किया है। फरमाया कि ये जो लोग मस्जिदों में नहीं आते
اور बाजमात नमाज अदा करने की तरफ तवज्जो नहीं करते, अगर इनको ये पता चल जाए कि इशा की नमाज जो सबसे मुश्किल नमाज होती है या फिर फजर की नमाज बहुत मुश्किल होती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इशा की नमाज हो और इनको अगर सिर्फ इतना पता चल जाए कि वहाँ पर खाना मिलेगा, खाना मिलने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये फरमाया कि आराकन, यानी ऐसी हड्डी कि उनको अगर ये यकीन हो जाए कि वहाँ कोई हड्डी गोश्त वाली मिलेगी, यानी खाना मिलेगा, या दो खुर मिल जाएंगे यानी बकरी के पाए मिल जाएंगे, तो यानी इसके बारे में फरमाया कि ये फिर जो है वहाँ दौड़ कर जो है ना वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी इसमें पहली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अरकन, तो यानी ये ऐसी हड्डी को कहते हैं जिसके ऊपर बारीक गोश्त जो है ना वो चढ़ा हुआ होता है, जैसे मुर्गी की हड्डी के ऊपर गोश्त होता है या बकरी के जो है ना हड्डी के ऊपर गोश्त होता है, तो उसके बारे में फरमाया। फिर इसी तरह फरमाया कि मिरमातैन, यहाँ लफ्ज़ दूसरा जो इस्तेमाल हुआ वो मिरमातैन का इस्तेमाल हुआ। मिरमातुन जो है ना ये तस्निया के लिए, यानी इसका तस्निया है मिरमातैन, यानी मिरमातुन का तस्निया जो है वो मिरमातैन है। इसका मतलब ये है कि बकरी के दो खुर, या फिर जिसको आज के ज़माने में हम उनको पाए कहते हैं, कि अगर किसी को ये यकीन हो जाए कि वहाँ उसको हड्डी मिलेगी, गोश्त मिलेगा, सालन मिलेगा, खाना मिलेगा, पाए मिलेंगे, या फिर नमाज के बाद जो है ना उसके लिए खाने का अहतमाम है, तो फिर लोग दौड़कर जो है ना मस्जिद की तरफ जा रहे हो। तो यानी इसका मतलब ये है कि इससे ये अंदाज़ा होता है कि मस्जिद में इसका यानी आम लोगों को अगर ये पता चल जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की नेचर को बयान किया है कि अगर आम लोगों को ये पता चल जाए कि वहाँ पर कुछ खाना तकसीम हो रहा है या फिर कोई राशन तकसीम हो रहा है, तो वो फिर लालच के अंदर जो है ना मस्जिद में आ जाएंगे। और दूसरी अहादीस के अंदर हम इस बात को भी देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में, चूँकि ये इंसान की इबादत हैं, ज़िक्र व अस्कार हैं, या खंदा पेशानी से इंसानों को मिलना है, इसका अजर व सवाब पर्दे के पीछे है। या जैसे अब रमज़ान शुरू हो गया है तो रमज़ान का एक आदमी रोज़ा रखता है, अब इसका अजर व सवाब कितना है ये पर्दे के पीछे ये इंसान को नज़र नहीं आता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर ये बात फरमाई कि अगर तुम्हें यानी अजान देने का अजर या इकामत कहने का अजर या फिर पहली सफ़ में बैठने का अजर अगर तुम्हें मालूम हो जाए, तो तुम जो है ना एक दूसरे से आगे बढ़कर कुरानंदाजी करो और पहली सफ़ में बैठने की कोशिश करो, इकामत कहने की कोशिश करो और अजान कहने की कोशिश करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह ये भी इसी हदीस में ये भी फरमाया कि एक आदमी जो है ना ज़ोहर की नमाज के बारे में ताकीद फरमाई कि उसको जल्दी अदा करो, और फिर फरमाया कि आतिमा यानी इशा की नमाज को, मगरिब और इशा की नमाज को अरब जो है ना आतिमा भी कहते थे। कहा कि इशा की नमाज और फजर की नमाज का अगर तुम्हें अजर मालूम हो जाए तो फिर लोग जो है ना सरीनों के बल घसीटते हुए जो है ना मस्जिद की तरफ आएंगे। यानी इन इबादत का घर से निकल के मस्जिद तक जाना, बावुज़ू होके जाना, उसके ज़रिए से गुनाहों का झड़ जाना और उसके ज़रिए से इंसान के दर्जात का बुलंद होना, मस्जिद में जाके एहतिकाफ़ की नीयत करके वहाँ बैठ जाना, यानी आज़ान कहना, इकामत कहना, फ़र्ज़ नमाज के लिए जो है ना इंतज़ार करना, तो यानी इन चीज़ों का इतना अजर और सवाब है कि इंसान उसका कोई हद व हिसाब की जो है ना वो पैमाइश नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि यानी ज़ाहिरन उसका कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो पर्दे के पीछे है, गैब का इल्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, तो इस वजह से जो है ना इंसान उसको जो है ना नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन फरमाया कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि मस्जिद में खाना बट रहा है, मस्जिद में जो है ना खाना तकसीम होगा इशा की नमाज के बाद, और उसके बाद उनको खाना मिलेगा या कोई राशन मिलेगा या कोई पैसे मिलेंगे, तो फिर इंसान दौड़ के जो है ना मस्जिद में चला जाए, इशा की नमाज भी पढ़ ले। यानी दुनियावी लालच के नुक्ते नज़र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की जो फितरत है ना, जिसके अंदर पस मंज़र में ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि वो ज़ाहिरी तौर पर जो है ना मालो असबाब की तरफ मोहब्बत रखता है, रग़बत रखता है, तो इन अहादीस के ज़रिए से यानी फ़र्ज़ नमाज को बाजमात अदा करना उसकी ताकीद फरमाई गई है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसको जो है ना फ़र्ज़ के दर्जे में तसव्वुर रखते हैं, फ़र्ज़ समझते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत सारी अहादीस को मिला के जब पढ़ा जाता है तो उसमें जो है ना इसकी अफजलियत का अंदाज़ा होता है। तो यानी नमाज बाजमात फ़र्ज़ बाजमात को जो है ना मस्जिद में अदा करना
اس کو 27 گنا بھی کہا گیا، 25 گنا بھی کہا گیا، اور پھر جتنا اللہ چاہے اس کو بڑھا دے اس کے اجر و ثواب کو۔ تو یعنی آگے فضیلت کی جو ہے نا احادیث بھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم مطالعہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک جو آج شروع ہوا ہے، تو اس میں جو ہے نا رحمتیں اور نیکیاں اور برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔